رواں سال کے دوران 605 شہری جاں بحق، 7,500 افراد زخمی ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے مراج اختر سے۔ جی بتائیے گا مراج۔ کراچی شہر میں ٹریفک حادثات کا سلسلہ جاری ہے۔ خونی حادثات میں رواں سال کے 8 ماہ کے دوران اب تک 605 افراد جو ہے وہ زندگی کی بازی ہار چکے ہیں اور خونی ٹریفک کی نظر ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں زخمیوں کی تو اب تک جو 8 ماہ کی صورتحال ہے اس میں رواں سال میں اب تک 7,500 سے زائد ایسے لوگ ہیں جو کہ ٹریفک حادثات میں زخمی ہوئے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں چیف آف ویلفیئر کے ہیڈ آفس کے باہر اور ہمارے ساتھ ترجمان موجود ہیں چودھری شاہد۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ کیا صورتحال رہی 8 ماہ کے دوران میں ٹریفک حادثات کی۔ السلام علیکم شاہد صاحب، یہ بتائیے گا کہ 8 ماہ کے دوران میں حادثات کتنے ہوئے ہیں اور کیا صورتحال ہے، کتنے زخمی ہیں، ڈیٹیل کے ساتھ ذرا بتائیں۔ 8 ماہ یہ رواں سال کے 8 ماہ کے دوران جو ہے آج تقریباً 605 افراد ایسے ہیں جو ٹریفک حادثات میں جاں بحق ہو چکے ہیں کراچی کے مختلف علاقوں میں، اور زخمیوں کی بات کریں تو 7,500 سے زائد جو افراد ہیں کراچی کے مختلف ٹریفک حادثات میں جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں، جن کو سول جناح عباسی منتقل کیا۔ اور اگر ہیوی وہیکل کی بات کریں تو 185 افراد ایسے ہیں جو ہیوی گاڑیوں کی زد میں آ کر جاں بحق ہو چکے ہیں، جس میں خواتین، بچے اور مرد شامل ہیں۔ بدقسمتی سے پرسوں جو ہے تقریباً 10 افراد ایسے ہیں جو ٹریفک حادثات میں جاں بحق ہوئے 12 گھنٹوں کے دوران، اور جس میں خواتین، بچے اور مرد شامل تھے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ کہ روزانہ جو ہے ٹریفک حادثات بڑھتے جا رہے ہیں، کوئی امپلیمنٹ ہو نہیں رہا اور نہ کوئی قانون پر عمل کرنے کو تیار ہے، نہ اوور اسپیڈنگ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ جلد بازی کے چکر میں جو ہے وہ کسی نہ کسی ہیوی وہیکل کی زد میں آ کر زخمی یا جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کی بائکس مینٹین نہیں ہے، ہیلمٹ ویئر نہیں کرتے، احتیاط نہیں کرتے، ہمیں اپنا سفر جو ہے اطمینان سے اور سکون سے کرنا چاہیے تاکہ ہم اور ہماری فیملی جو ہے محفوظ رہ سکیں۔ ٹھیک ہے، چودھری شاہد ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ تقریباً 605 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہیں، 7,500 سے زائد زخمی ہیں، اور علاوہ 185 افراد ایسے ہیں جو کہ ہیوی وہیکل کی زد میں آ کر جاں بحق ہوئے، اور ان تمام زخمیوں کو اور جاں بحق ہونے والے افراد کو مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ جی، سٹی کورٹ میں املاک کو نقصان پہنچانے اور ٹریفک حادثے کے مقدمے کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے ملزم زاہد کی ضمانت 1 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض منظور کر دی۔ تفصیلات جانتے ہیں جواد آصف سے۔ جواد بتائیے گا۔ جی، املاک کو نقصان پہنچانے اور ٹریفک حادثے کا مقدمہ ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرقی کی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ دوران سماعت جو ہے وہ ملزم زاہد کی درخواست سے ضمانت پر سنوائی ہوئی۔ فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے ملزم کی درخواست سے ضمانت منظور کر لی اور اسے 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلقے جمع کروانے کا حکم صادر کیا، اور جیل حکام کو خط ارسال کر دیا کہ ملزم ضمانت جمع کروا دے، مچلقے جمع کروا دے تو اسے رہا کر دیا جائے، اگر وہ کسی اور کیس میں مطلوب نہیں ہے تو۔ ملزم کو جوڈیشل مجسٹریٹ نے عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیجا تھا۔ ملزم کے خلاف پولیس حکام کے مطابق یہ مقدمہ تھانہ لانڈی میں درج کیا گیا تھا، اور اس مقدمے میں قتل بالخطا، قتل بالسبب کی دفعات شامل کی گئی تھی۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کی 9 روزہ ہڑتال سے 450 ارب روپے کے نقصان پر تشویش۔ آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اونرز ایسوسی ایشن صدر محمد اویس چودھری نے کہا ہے کہ ٹرانسپورٹرز کے مسائل کا بروقت حل ملکی معیشت کو اربوں روپے کا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ حکومت بروقت مسائل حل کرے تو مستقبل میں ہڑتال کی نوبت نہیں آئے گی۔ مزید کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ جی، برآمدی شعبوں کی مختلف ایسوسی ایشنز کے مطابق گڈز ٹرانسپورٹرز کی 9 روزہ ہڑتال کی وجہ سے ملکی معیشت کو تقریباً 450 ارب روپے کا نقصان پہنچا ہے۔ یہ نقصان اس وجہ سے ہوا کہ کنٹینرز بر وقت نہیں پہنچ سکے، اسی طرح جو جہاز تھے، بحری جہاز تھے، ان میں سپیس خالی گئی مال نہ پہنچنے کی وجہ سے، جو ایکسپورٹ کے آرڈرز تھے وہ کینسل ہوئے، اور اس کے بعد جو شپمنٹ کے فریٹ سے وہ بڑھ گئے۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے 450 ارب روپے کا نقصان مختلف جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں، امپورٹرز ہیں، کاروباری ادارے ہیں، ان کو برداشت کرنا پڑا۔ یہ ہماری حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہم ٹرانسپورٹرز اس کو اپنی کامیابی نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کی وجہ سے یہ جو 450 ارب روپے کا ملکی معیشت کو نقصان ہوا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں اور ان کے سامنے اس پوائنٹ کو رکھتے ہیں کہ یہ سوچنے کی چیز ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ گڈز ٹرانسپورٹ کے شعبے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے جو ہمارے مسائل ہیں ان کا بر وقت ادراک کیا جائے۔ ہمارے مسائل کو، ہمیں جو روڈ کے اوپر تکلیف ہے، جو پریشانی ہے، اس کا حل ہڑتال سے جانے سے پہلے تلاش کیا جانا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ گڈز ٹرانسپورٹرز جب مجبور ہو جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی اور چارہ باقی نہیں بچتا، گورنمنٹ ہمارے مطالبات سن نہیں رہی ہوتی، ہماری تکالیف کو، ہماری پریشانیوں کو سمجھ نہیں رہی ہوتی، تو مجبوراً ہمیں ہڑتال کے آپشن پہ جانا پڑتا ہے۔ ٹوبلز مینوفیکچررز ایسوسی ایشن نے وفاقی وزارت تجارت کی جانب سے برآمدی شعبوں کے لیے 10 ارب روپے کی منظوری کو خوش آئند قرار دے دیا۔
ایسوسی ایشن کے سینئر وائس چیئرمین جنید الرحمان کا کہنا تھا کہ 10 ارب روپے ملنے سے ایکسپورٹرز کے مسائل حل کرنے میں مدد مل سکے گی۔ تفصیلات جانتے ہیں وسیم افتخار سے۔ وسیم بتائیے گا۔ جی، وفاقی وزارت تجارت کی جانب سے ایکسپورٹ سیکٹر کی معاونت کے لیے 10 ارب روپے مختص کرنے کی منظوری دی گئی ہے، اور یہ 10 ارب روپے جو ہیں ٹیکسٹائل، ملبوسات اور دیگر برآمدی شعبوں کے لیے ڈیوٹی ڈرا بیک اور ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن اسکیموں کے تحت فراہم کیے جائیں گے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جنید الرحمان، جو کہ سینئر وائس چیئرمین ہیں ٹاولز مینوفیکچر ایسوسی ایشن کے۔ ان سے جانتے ہیں کہ جو وفاقی وزارت تجارت کی جانب سے یہ جو اقدام اٹھایا گیا ہے اور 10 ارب روپے ٹیکسٹائل سیکٹر بالخصوص اور ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے مختص کرنے کی منظوری دی گئی ہے، کیسا دیکھتے ہیں اس انیشیٹو کو آپ؟ ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال ایکسپورٹ ہماری جو ہے وہ اوور آل ایکسپورٹ بھی اور ٹیکسٹائل ایکسپورٹ بھی گراوٹ کا شکار تھی، اور ہماری انڈسٹری کا، ہماری بزنس کمیونٹی کا یہ بڑا مطالبہ تھا کہ ایسی اسکیمز جو ہیں جو پاس میں رہی ہیں، ماضی میں رہی ہیں، ان کو بحال کیا جائے اور لانچ کیا جائے تاکہ بزنس کمیونٹی کے مسائل جو ہے وہ حل ہو سکیں۔ تو میں بڑا اس کو خوشائند دیکھتا ہوں کہ جو یہ 10 بلین روپیز کا جو پیکج کہہ لیجیے یا ایک قسم کی ایک سپورٹ جو ہے وہ دی گئی ہے، جس کے اندر خاص طور پہ جو ٹیکسٹائل اپ گریڈیشن پروسیس کے تقریباً 4.5 ارب شامل ہیں، اور اس کے علاوہ جو ڈیوٹی اور ٹیکسز ہیں، DLTL وغیرہ کے لیویز ہیں اور دوسرے ریفنڈز ہیں، اس کا ایک تقریباً 4.5 ارب کا پیکج ہے۔ تو یہ یقیناً آج کل کا جو سینیریو انٹرنیشنل، جس میں بہت زیادہ انسرٹینٹی ہے دنیا کے اندر، ایک ظاہر جنگ کی وجہ سے، اور دوسری یہ کہ لاجسٹیکل جو ایشوز ہیں جو بزنس خاص طور ایکسپورٹرز کو آ رہے ہیں، شپنگ کے حوالے سے، فریٹس کے حوالے سے جو ہے وہ سروائیو نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس میں ان کو ایک اچھا ایک آپ کہہ سپورٹ ملے گی، اور یہ بہت لانگ سٹینڈنگ بھی تھی، کیونکہ دیکھیں جب کیش فلوز وغیرہ ہرٹ ہوتے ہیں انڈسٹری کے، تو انڈسٹری اپنی پرفارم نہیں کر سکتی، نہ پروڈکشن کر سکتی اپنی پراپر طریقے سے، اور نہ ہی ایکسپورٹ کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا ساتھ ساتھ کہ یہ جو منسٹر آف کامرس جام کمال صاحب نے یہ بہت اچھا اقدام لیا ہے۔ جی بالکل، تفصیلی گفتگو ہوئی جنید الرحمان سے، اور ان کا کہنا ہے کہ FBR کی جانب سے جو اقدامات اٹھائے گئے، کمیٹی جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے، یہ انتہائی خوشائند ہے۔ اس سے ایکسپورٹرز کے مسائل بھی حل ہوں گے، جبکہ وفاقی وزارت تجارت کی جانب سے جو 10 ارب روپے مختص کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، اس سے بھی جو ہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر پہ بہت اچھے جو ہے وہ اثرات مرتب ہوں گے، اور یقیناً اس سے جو ہے وہ ایکسپورٹرز کو فائدہ ہوگا۔ جی، محکمہ اطلاعات سندھ میں تقرر و تبادلے، صاحب خان بھنڈ کا تبادلہ کر دیا گیا۔ صاحب خان بھنڈ ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات مقرر کر دیے گئے ہیں۔ ماریہ یونس کو ایڈمن کا اضافی چارج مل گیا ہے۔ تقرر و تبادلوں کی منظوری سیکرٹری اطلاعات نے دی ہے۔ کاشف گلزار شیخ کی منظوری سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کریں کہ کاشف گلزار شیخ کی منظوری سے نوٹیفیکیشن جاری۔ تقرر اور تبادلوں کی منظوری سیکرٹری اطلاعات دیں گے۔ ماریہ یونس کو ایڈمن کا اضافی چارج مل گیا ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلیں کہ صاحب خان بھنڈ کا تبادلہ کر دیا گیا۔ صاحب خان بھنڈ ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات تعینات کر دیے گئے۔ محکمہ اطلاعات سندھ میں تقرر اور تبادلے، صاحب خان بھنڈ کا تبادلہ کر دیا گیا۔ صاحب خان بھنڈ ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات تعینات، ماریہ یونس کو ایڈمن کا اضافی چارج مل گیا۔ تقرر اور تبادلوں کی منظوری سیکرٹری اطلاعات دیں گے۔ کاشف گلزار شیخ کی منظوری سے نوٹیفیکیشن جاری۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ ماریہ یونس کو ایڈمن کا اضافی چارج بھی مل گیا ہے۔ اپڈیٹ کریں کہ صاحب خان بھنڈ ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات تعینات۔ نارتھ ناظم آباد کی مشہور لنڈی کوتل چورنگی تباہی کی داستان بن گئی۔ چورنگی نشیوں کی آماجگاہ، جبکہ جگہ جگہ پر ملبہ انتظامیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ چورنگی عرصہ دراز سے خستہ حالی کا شکار ہے۔ علاقے میں دیگر ترقیاتی کام جاری ہیں، لیکن چورنگی کو لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں رمشا اسماعیل سے۔ رمشا بتائیے گا۔ جی بالکل، نارتھ ناظم آباد کی مشہور چورنگی لنڈی کوتل چورنگی جو ہے وہ اس وقت تباہی کے منظر جو ہے وہ پیش کر رہی ہے۔ میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گی کہ دکھائیے کہ خوبصورت چورنگی جو یہاں کی ایک مشہور چورنگی سمجھی جاتی ہے، اسے جو ہے وہ اس کا برا حال ہو چکا ہے۔ یہاں پر نشیوں کی آماجگاہ بن چکا ہے، جبکہ جگہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ملبہ بھی پڑا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ملبہ جو ہے لا کر یہاں پر پھینکا جاتا ہے۔ کب سے یہ چورنگی اس طرح کی صورتحال ہے، جاننے کے لیے رہائشی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کیا کہیں گے سر؟ بڑی خوبصورت چورنگی ہوتی تھی یہ، اس کو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہاں نشیوں کی آماجگاہ ہے، ملبہ پڑا ہوا ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ نشیوں کی آماجگاہ اور اس کے ذمہ دار ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں۔ اچھا، اس وقت اس میں 2-3 ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں۔ ایک تو ٹاؤن ہو گیا، نوزاد ٹاؤن کے ذمہ ہی سارا آتا ہے۔
अच्छा, फिर उसके बाद ये आता है ये क्लिक प्रोग्राम जो इस वक्त तो KMC के रहे तमाम या सिंध गवर्नमेंट के जेर इंतजाम है, वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आप देखें सिंध गवर्नमेंट की यहाँ कोई रेट नज़र नहीं आ रही, ना उनकी मिनिस्ट्री के हिसाब से नज़र आ रही है, ना नौदाबाद टाउन के जो सब मुंतखब नुमाइंदे वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेरी समझ से तो बाहर है। इलाका आवाम परेशान है। अच्छा, ये बड़ा जंक्शन है, आप लंडी कोतल चौरंगी मशहूर ज़माना है, सब जानते ही है। उस तरफ चले जाएँ तो फैलबेरी आ जाता है और इस तरफ जाए नौदाबाद आ जाता है। तो कम से कम नौदाबाद की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि इसको देखें, और अगर आपके पास इतने वसाइल नहीं है तो फैलबेरी से ले लें थोड़ी मदद, अगर नहीं हो तो सिंध गवर्नमेंट से हेल्प ले लें, लेकिन कम से कम इस चौरंगी को खूबसूरत तो बना दें, ढंग का तो कर दें। क्लिप वालों ने जो नाले वाला बरसाती नाला डाला था नदी में जाके गिर रहा है, तो उसके बाद से उन्होंने पलट के देखा ही नहीं इसको। और एक मेरी गुजारिश है, सिंध गवर्नमेंट करे या नौदाबाद टाउन करे या क्लिप प्रोग्राम करे कि चौरंगी थोड़ा छोटा कर दें या सिग्नल यहाँ पे लगा दें, तो कम से कम लोगों का पेट्रोल और वक्त का ज़िया कम हो जाएगा। बहुत कितना अर्सा हो चुका है इसी तरह चौरंगी? तकरीबन आप लगाएं, ये अगर बहुत पीछे जाएं तो आप 10 साल भी लगा सकते हैं, और जब क्लिक वालों का ले लें तो 4 साल और 3 साल के लगभग ये बर्बाद हो गया सारा। जी बिल्कुल, लंडी कोतल चौरंगी नाज़िमाबाद की मशहूर चौरंगी है जो इस वक्त नशइयों की हमाजगाह बन चुका है। यहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है। यहाँ की रिहायशियों का ये कहना है कि बड़ी खूबसूरत चौरंगी होती थी, इससे दोबारा से जो है मुतल्लिका इंतजामिया को चाहिए कि इसको दोबारा से जो है इसकी असली हालत में बहाल किया जाए। शाहराह पाकिस्तान और MA जिन्ना रोड को मिलाने वाला SM तौफीक रोड पर वाक़या मसरूफ़ तरीन हेट्टी फ्लाईओवर भी नशावर अफराद की सरगर्मियों की ज़द में आ गया है। पुल के सतूनों और बीमों से सरिया निकालने का सिलसिला जारी है, जिससे पुल की साख्त को भी नुकसान पहुँचने का खदशा है। मज़ीद जानते हैं रिजवान अहमद की इस रिपोर्ट में। शहर के मसरूफ़ तरीन तीनट्टी फ्लाईओवर के नीचे नशा आवर अफराद के डेरे, जबकि ऊपर पुल के सतून और बीम उनकी मुबैना सरगर्मियों का निशाना बन रहे हैं। नशा आवर अफराद की जानिब से पुल के सतूनों को उधेड़ कर सरिया निकालने के मनाजिर कैमरे ने महफूज कर लिए, जबकि बाज़ मकामात पर बीमों को भी काट कर कीमती सरिया निकाला जा रहा है। शहरियों का कहना है कि पुल के नीचे बड़ी तादाद में नशा आवर अफराद मौजूद हैं, जो न सिर्फ इलाके में खौफ व हिरास का बाइस बन रहे हैं, बल्कि पुल के बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये तो हमारी सिंध गवर्नमेंट जो है उसको एक्शन लेना चाहिए। ये हीरोइन की किसी दिन ये पुलिस ढाल देंगे और यहाँ से हजारों लोग का आना जाना है। अल्लाह ना करे किसी को नुकसान हो, किसी के साथ कोई हादसा हो जाए। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको यहाँ से हटाएं, इनको कहीं और ले जाके फेंकें। तीनट्टी फ्लाईओवर शाहराह पाकिस्तान और MA जिन्ना रोड को मिलाने वाली अहम गुजरगाह है, जहां रोजाना हजारों गाड़ियां गुजरती हैं। शहरियों के मुताबिक पुल के ढांचे से सरिया निकालने का अमल फौरी तवज्जो का मुतकाजी है। ये बहुत खर्चा ये है कि इंसान की जिंदगियों का खर्चा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कंट्रोल नहीं है हिरोनियों का। बेशुमार हिरोनी अंदर ले जाते हैं पुलिस वाले, भर के फिर बाद में छोड़ देते हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि तीनट्टी फ्लाईओवर के नीचे कायम नशा आवर अफराद के डेरे खत्म करने के साथ पुल को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, ताकि अहम शाहरा को किसी बड़े हादसे से महफूज रखा जा सके। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। मुल्क भर में ज़चगी के दौरान फस्टोला के बढ़ते रुझानात की रोकथाम के लिए मकामी होटल में सेमिनार। डॉक्टर शेरशाह सैयद कहते हैं कि हर साल सिर्फ कोहीगोट हस्पताल में 1500 से ज़ायद ख़वातीन फिस्टोला का शिकार होकर रिपोर्ट हो रही हैं, जिस पर अमले को मज़ीद ट्रेनिंग और तरबियत देने की ज़रूरत है। तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं मकामी होटल में, जहाँ पर मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले तिब्बी माहिरीन यहाँ पे शरीक हैं, और इसका टॉपिक जो है वो फेस्टोला की बीमारी से बचाव और आगे किस तरह इस पर रोकथाम और दीगर आगाही के हवाले से इकदाम किए जाए। तो इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शेरशाह सैयद साहब। इनसे पूछेंगे कि आज की मीटिंग का मकसद क्या है और इनके मकासद क्या हैं, चीज़ें क्या हैं, किस तरह रोक सकते हैं इस बीमारी को, और इस हवाले से जो आज मीटिंग है इसका एजेंडा क्या है। सर बहुत शुक्रिया टाइम दिया। सर क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से? यार आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया है। बात यह है कि आज की मीटिंग इस बात पे हो रही है कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त गायनेकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन इस बात के बहुत शौकीन हो गए हैं कि लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन करके बच्चे को निकाला जाए, यानी उनकी एबनॉर्मल डिलीवरी कराई जाए पेट काट करके, बच्चादानी काट करके। तो इस बच्चादानी को और पेट काटने के मरहले में ये कर रहे हैं कि पेशाब की थैली में सुराख कर देते हैं और उसके बाद मुस्तकिल पेशाब बहता रहता है। इसी तरह से बहुत से गायनेकोलॉजिस्ट और सर्जन जो कि इस बात में ट्रेनिंग नहीं है उनकी कि वो बच्चेदानी का ऑपरेशन करें,
तो बच्चादानी का ऑपरेशन करते हैं, उसको निकालने की कोशिश करते हैं। बच्चादानी तो खैर जैसे तैसे निकाल लेते हैं, उसके बाद वो पेशाब की थैली में सुराख कर देते हैं और पेशाब की नाली में सुराख कर देते हैं, फिर इन मरीज़ों का पेशाब बेहतर रहता है। तो आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं तमाम ख़वातीन से ख़ास तौर पर दरख्वास्त करता हूँ, जब भी उनका सर्जन उनको बोले कि हम आपका सिज़ेरियन सेक्शन करेंगे तो उसका हाथ रोक लें। 90% औरतों को सिज़ेरियन सेक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मल औरतें हैं, उनका बच्चा नॉर्मल तरीके से होना चाहिए। इस सिज़ेरियन सेक्शन की वजह से रोज़ाना हमारे कोई अस्पताल में मरीज़ आ रहे हैं जिनका पेशाब बेहतर रहता है, और ये जनरल सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट, उनकी गलती होती है। ऐसे जनरल सर्जन, ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट हैं जिनकी ट्रेनिंग नहीं है और वो हिस्टेक्टोमी भी कर रहे हैं, सेक्शन भी कर रहे हैं, जो कि उनका काम नहीं है। तो आज की मीटिंग इसी सिलसिले में है कि इसको किस तरह से रोका जाए। ये जो बेचारी औरतें हैं ये बिल्कुल एक अच्छे काम के लिए जाती हैं कि उनको बच्चा पैदा होगा, या बूढ़ी औरतें हैं जिनका ये मसला होता है कि उनका बच्चादानी को निकालना है, लेकिन उनको ऑपरेट करने वाले ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता है और पेशाब की थैली में सुराख करते हैं। तो आज की मीटिंग इस सिलसिले में, और ये आपके प्रोग्राम के ज़रिए तमाम औरतों से अपील है कि जब उनसे कोई कहे कि हम आपका बच्चादानी काट करके बच्चा निकालेंगे तो उससे होशियार हो जाए। दीगर डॉक्टर समेत दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी शरीक हैं, जिनका मकसद यही है कि फेस्टोला की रोकथाम के लिए फौरी तौर पर इक़दाम करना है। जी, जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के साथ ही शहर भर में गलियां, बाजार और शाहराहें खूबसूरती से सजने लगे। 12 रबीउल अव्वल की तैयारियों के लिए शहरियों ने झंडा मार्केट का रुख भी कर लिया। मुख्तलिफ स्टॉल्स पर सब्ज़ परचम, झंडियाँ, बैजेस, बच्चों के कपड़े और दीगर अशिया की खरीदारी जारी है। दुकानदारों के मुताबिक मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर शहरियों का जोशो खरोश तीतनी है। मज़ीद जानते हैं राबिल सदीद से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न भरपूर अंदाज में मनाने के लिए तैयारियां अपने उरूज पर हैं, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ झंडा गली में, जहाँ पर पहले मेरे कैमरामैन अमजद से मैं कहूँगी कि थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो दिखाते चले। तो झंडा गली में जो है वो किस तरह रौनकें लगी हुई हैं। आका की विलादत है और उसके जश्न के लिए यहाँ पर जो है वो लोगों का तांता बन गया है। यहाँ पर शहरी जो है वो अपनी यहाँ पर दिलचस्पी ले रहे हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीदने में, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो झंडे वगैरह मौजूद हैं, साथ ही बच्चियों के लिए ब्रेसलेट हैं, हेयर बैंड्स हैं, स्कार्फ वाले हेयर बैंड्स हैं, झंडे हैं, नालन पाक के, इस तरह की बहुत सारी कुछ चीज़ें जो है वो स्टॉल्स पे मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर एक स्टॉल के मालिक मौजूद हैं, इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। अंकल, ये बता दीजिएगा हमें, आपके पास ये जो चीज़ें हैं इसके लोगों की आमदोरफ्त कैसे देखने में आ रही है? माशाल्लाह आमदोरफ्त अच्छी है। हमारे पास जितनी भी वैरायटी बनी हुई है सिर्फ 200 रुपये की है, और हमारे पास ये झंडे, बैजेज, हर चीज़ बड़ी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग, और ये आका का मिलाद है, ये समझ कायनात का सबसे बड़ा जश्न है। हमारे आका की विलादत का दिन है और तकरीबन सारे अप्रिशिएट कर रहे हैं। टोटल वैरायटी हमारी इसमें 50% हमारे अपना बने हुए हैं, हैंड मेक बना हुआ टोटल। ये झंडे, बैजेज और ये स्कार्फ वगैरह हम खुद बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ झंडे लगे हुए हैं, ये बैजेज लगे हुए हैं। ये टोटल स्टॉल के ऊपर टोटल वैरायटी है, रुपट्टे, हार, बंदे सब है। ये लॉकेट, ब्रेसलेट, बालियाँ। अंकल, ये बता दीजिएगा लोग कैसे आ रहे हैं, लोगों का रश कितना देखने में आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह रश है, अच्छा काम है। जाहिर सी बात है इस चीज़ को जो हर बंदा आएगा, अभी थोड़ा दोपहर का टाइम है, सुबह में और रात में अच्छा काम होता है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर जो है वो स्टॉल के मालिक मौजूद है। उनका यही कहना है कि दोपहर और रात में जो है वो काफ़ी ज़्यादा शाम के औकात में रश ज़्यादा बढ़ जाता है, शाम और रात के दौरान। जबकि उनका यही कहना है कि हमारे आका की विलादत का जश्न है तो उसको भरपूर अंदाज से मनाने के लिए, शान और शान तरीके से मनाने के लिए जो है वो यहाँ पर उरूज पर हैं तैयारियाँ। और यही कहना है कि लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला भी जारी है, लेकिन रात गए जो है वो इधर पैर रखने की जगह नहीं होती। उनका कहना है क्योंकि रात में जो है वो ख़रीदारों का काफ़ी ज़्यादा रश बढ़ जाता है। जी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी हैं। ज़िला इंतज़ामिया, टाउन्स और सॉलिड वेस्ट का अमला मुश्तरका ऑपरेशन में मसरूफ़ है। जुलूसों के रास्तों और महाफिल के मकामात पर सफाई सुथराई के साथ तजावुज़ात के खात्मे का काम भी जारी है। मज़ीद जानते हैं रिजवान अहमद से। जी रिजवान। जी, 1501वां जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब सिर्फ 2 दिन की दूरी पर है, और इस सिलसिले में जो ज़िला वस्ती है उसकी अगर बात की जाए तो गुंजान आबाद ये ज़िला है, और यहाँ पर आशिकाने रसूल की जानिब से जो है बड़े पैमाने पर दुरूद व सलाम की महफिल मुनक्किद की जाती हैं। ना सिर्फ महफिल बल्कि इसके साथ साथ मरकजी जुलूस में शिरकत के लिए सैकड़ों की तादाद में जुलूस भी बरामद होते हैं। इन तमाम इंतजामात के हवाले से जो है इंतजामिया पर दबाव बढ़ जाता है। DC सेंट्रल के फोकल पर्सन ज़हीर अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं।
हैं, इनसे जान लेते हैं। ज़हीर साहब बहुत शुक्रिया, बताइएगा क्या क्या इंतजाम इस सिलसिले में उठाए जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। जैसा कि आपके इल्म है कि रबी अव्वल के हवाले से हमारे तमाम पांचों डिस्ट्रिक्ट के अंदर बाकायदा इस्तकबालिया कैम्प लगाए जाते हैं, शरबत की सबीली लगाई जाती है डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पे, टाउन चेयरमैन इसके साथ हमारे होते हैं। और हमारे हर टाउन के अंदर आपको पता है ज्यादातर न्यू कराची, लियाकताबाद, नाज़िमाबाद ये ऐसी नहीं जहाँ से तकरीबन मैं अब सिर्फ नाज़िमाबाद की बात करूँ तो 155 अंजुमन है, न्यू कराची जाए तो वहाँ 160 अंजुमन है, लियाकताबाद के अंदर है तो वहाँ भी तकरीबन 200 अंजुमन है, और तमाम अंजुमन हमारे राब्ते में। और हम 15 दिन पहले से ही तमाम काम कर रहे हैं। इसके अंदर क्रोचबिंड हो या रोड की सफाई हो, सॉलिड वेस्ट हमारे साथ कोऑर्डिनेशन के अंदर है। इस वक्त आप लोग को पता है कि 8 रबी अव्वल को जो जुलूस निकला था चुप ताजिए का, वो आपके सामने बहुत बड़ा जुलूस था। उसके बाद अब 9 मुहर्रम आज परचम कुशाई रात में हुई, जहां कल भी होने जानी है, और 11-12 को जो कैंप लगने हैं उसके हवाले से कंटिन्यू हमारा काम जारी है। अच्छा ये बताइएगा कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की सूरत हाल क्या है, क्योंकि इस किस्म की जो मीटिंग हुई थी प्रिपरेशन की उसमें ये शिकायत ज्यादा आई थी। बिल्कुल हमारे साथ ऑन बोर्ड है वाटर एंड सीवरेज भी, पुलिस भी, सब लोग। आपको पता है अभी परसों एक वाकया हुआ कि हमारी एक मेन लाइन बंद हुई जहाँ जुलूस निकल रहा था, उस लाइन के अंदर से बोरे बरामद हुए, बाकायदा उसकी वीडियो हमने सोशल मीडिया पे डाली है। तो ऐसे अनासिर हैं जो कामों में रुकावट पैदा कर रहे हैं, लेकिन एजेंसी हमारे साथ है और इंशाल्लाह हम ऐसे लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि आशिकाने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा से ज्यादा खिदमात की फराहमी के लिए इंतजामिया मुतहरिक है। 24 घंटे काम हो रहा है। इसमें टाउन इंतजामिया, 5 टाउन हुकूमतें और इसके साथ साथ जो जिले अफसरान हैं, म्यूनसिपल कमिश्नर हो या असिस्टेंट कमिश्नर हो, सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में बेहतर इंतजाम सामने आएंगे। जी, जमीयत उलमा पाकिस्तान की ज़ेर एहतमाम महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमा कराम, मजहबी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। महफिल में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और तालीमात पर रोशनी डाली गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न, 4 सू सब्ज़ परचमों की बहार, फिजा में मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाएं। महफिल मिलाद का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश की गई। मुकर्रिरीन का कहना था नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पूरी इंसानियत के लिए मशअले राह है। उन्होंने कहा कि माशरे में अमन, मोहब्बत, रवादारी और भाईचारे के फ़रोग़ के लिए सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अमल नागुज़ीर है। जो आज के हालात हैं उसके मुताबिक नौजवानों को जो है हम यूथ विंग के प्लेटफॉर्म पे जो है मुत्तहिद कर रहे हैं, और इस यूथ विंग की जानिब से ये यूथ मिलाद रैली में जो हमारे जमीयत उलमा पाकिस्तान कराची की पूरी कैबिनेट जो है माशाल्लाह से एक्टिव है, और उन्हीं की जानिब से ये उन्हीं की मेहनत है जो आज जो है ये मिलाद रैली निकाली जा रही है। महफिल के इख्तिताम पर मुल्क व कौम की सलामती, इस्तेहकाम और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सबसे पहले यूथ विंग के मरकज़ी रहनुमा मोहतरम जनाब राव अब्दुर्रहमान साहब को, जिन और इनकी पूरी टीम को, जिनकी काविशों से आज आक़ाए दो जहां नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम की आमद की जश्न की ये रैली अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी रिवायती रास्तों से रवां दवा है। आज के इस रैली के मौके पे मैं पैगाम ये देना चाहूँगा कि हमें हुजूर से अपनी मोहब्बत का जो अंदाज़ है इस तरह अपनाना होगा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत भी करें और आपकी सीरत पे अमल भी करें। जमीयत उलमाए पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम होने वाली इस महफिल में शुरका ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ शायान अली, सिटी 21। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के साथ ही शहर में घरों और गलियों को सजाने का सिलसिला भी तेज़ हो गया। मुख्तलिफ इक़साम के लाइट्स की मांग बढ़ गई। दुकानदारों के मुताबिक कीमतों में इजाफा ज़रूर हुआ है, ताहम आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से ख़रीदारी का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट में। ईद मिलादुन्नबी की आमद अकीदत के रंग नुमाया, घरों और गलियों की सजावट के लिए खरीदारी बढ़ गई। जश्न ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां उरूज पर पहुंचने लगी। कहीं सब्ज झंडियां और झंडे सजाए जा रहे हैं तो कहीं रंग बिरंगी लाइट से घरों और गलियों को रोशन करने की तैयारियां जारी हैं। शहर की मार्केटों में रिमोट कंट्रोल लाइट्स, LED, SMD और मुख्तलिफ डिजाइन के लाइट्स दस्तयाब हैं, जिनकी खरीदारी के लिए शहरी बड़ी तादाद में दुकानों का
रुख कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर लाइट्स की मांग बढ़ गई है। कीमतों में कुछ इजाफा जरूर हुआ, ताहम आशिकाने रसूल की जानिब से सजावट के लिए खरीदारी का सिलसिला जारी है। ये पिछली बार की तरह इस बार तो महंगी है लाइट से, काफ़ी रेट बढ़े हुए हैं क्योंकि पेट्रोल जाहिर सी बात है महंगा, तो हर चीज़ महंगी है। लाइटों के अंदर मेरे पास बहुत वैरायटी है, LED लाइट है, स्टिल लाइट है, और भी बहुत सारी मुख्तलिफ वैरायटी है। कम फिट भी है, ज़्यादा फिट भी है, रिमोट कंट्रोल लाइटें भी हैं, मुख्तलिफ लाइटें मेरे पास। शहरी भी घरों और गलियों को जश्न ईद मिलादुन नबी के रंग में रंगने के लिए झंडियों और लाइट्स की खरीदारी में मसरूफ हैं, जिनका कहना है कि मुनासिब कीमत पर मुख्तलिफ इकसाम की लाइट्स दस्तयाब हैं, इसीलिए वो यहाँ से खरीदारी कर रहे हैं। मैं ये छोटी चिली मिली और पट्टी वगैरह की लाइटें वगैरह लेने के लिए आया था, बाकी बल्ब वगैरह लिए हैं, झंडियाँ वगैरह लेनी हैं। हमें खुशी है, महंगाई तो खैर है लेकिन इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं है, कीमतें यहाँ पे सही कीमत पे मिल जाती है, इसलिए मैं लांडी से यहाँ आया। जश्न ईद मिलादुन नबी की आमद के साथ ही शहर की मार्केटों में भी रौनक बढ़ गई है। शहरियों का कहना है कि घरों और गलियों की सजावट जहाँ अकीदत और मोहब्बत के इजहार का जरिया है, वहीं शहर की रौनक में भी इजाफा कर दी है। कैमरामैन अहमद के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चंद ही रोज़ बाकी हैं। शहर कायद में मिलाद रैलियों और जुलूसों का सिलसिला भी जारी है। कश्मीर कॉलोनी में सिंध इदारा मुआरिफुल कुरान के तलबा और असासा की जानिब से मिलाद रैली निकाली गई, जिसमें इमाम मस्जिद, तलबा और आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। दो आजकल प्राचा की रिपोर्ट देखिए। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद करीब, कराची की फिजा इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग में रंगने लगी। कश्मीर कॉलोनी में सिंध इदारा मारफुल कुरान के तलबा और उस्ताजा की जानिब से मिलाद रैली निकाली गई, जिसमें तलबा, असातिज़ा, इमाम मस्जिद और अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली की शुरका ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हुए दरूद व सलाम पेश किया, जबकि जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आम करने और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने के अज़म का इजहार भी किया। शुरका का कहना था कि जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लिए खुशी, मोहब्बत और अकीदत का मौका है, जबकि मिलाद और रैलियां मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इजहार का जरिया है। बच्चे पैगाम देना चाहते हैं कि आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यौम विलादत है, और ये आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत, अपनी अकीदत और ये बताने के लिए कि हमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ इस दुनिया में महबूब है वो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। ये रैली निकालने का मकसद ये है कि ताकि तमाम लोग हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात वाला सिफ़ात के साथ जुड़ जाएं, आपसे मोहब्बत करें, आपसे प्यार करें, आपके नक्शे कदम पर अमल करें, और जो पैगाम आप लेकर आए हैं उसको अपना कर दुनिया में भी सुरखरू हो जाएं और आखिरत में भी कामयाब हो जाएं। रैली में तलबा का जोशो खरोश भी दीद नहीं रहा। शुरका ने जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियों में भरपूर शिरकत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाने के अज़म का इजहार किया। कैमरामैन मनान के साथ दुआ शकील बराचा, सिटी 21।